माननीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री जी, माननीय राज्य मंत्री जी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, उपस्थित अन्य सभी सम्मानित महानुभाव, यह मेरे लिए अत्यंत गौरव और हर्ष की विषय है कि आज मुझे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। मैं बड़े ही आदर एवं सम्मान के साथ उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी माननीय मंत्रीगण, संस्थानों के प्रमुखों, वैज्ञानिकों, साथी अधिकारियों, सहयोगियों तथा गणमान्य अतिथियों का भी मैं हृदय से स्वागत करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वर्ष 2015 में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। कार्यक्रम की शुरुआत में सुपर कंप्यूटर की अधिकांश हिस्से विदेशों से आयात किए जाते थे। पिछले 9 वर्षों में सीडैक एवं अन्य संस्थाओं के वैज्ञानिकों के परिश्रम से अब परम रुद्रा सुपर कंप्यूटरों का भारत में ही डिजाइन एवं विकास किया जाता है। मुझे यह बताते हुए अत्यंत गर्व और खुशी है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लोकार्पित किए जा रहे तीनों सुपर कंप्यूटर पहले पूर्ण रूप से स्वदेशी सुपर कंप्यूटर हैं। इनका उपयोग जायंट मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप पुणे द्वारा खगोल विज्ञान में, इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेटर सेंटर नई दिल्ली द्वारा परमाणु विज्ञान में तथा एसएन बोस सेंटर कोलकाता द्वारा विज्ञान के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में नए वैज्ञानिक परीक्षण के लिए किया जाएगा। इसी तरह यह कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मेक इन इंडिया की कल्पना को साकार करता है। इसी प्रकार पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्रालय द्वारा हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर सिस्टम्स की स्थापना की गई है, जिसका उपयोग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे और नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग नोएडा द्वारा मौसम एवं जलवायु से संबंधित अध्ययनों के लिए किया जाएगा। सबसे पहले मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि 3 परम रुद्रा सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम्स को रिमोट का बटन दबाकर लॉन्च करने की कृपा करें। From decoding the secrets of the cosmos to driving revolutionary advances in medicine, agriculture, climate sciences, and energy management, India's supercomputers journey represent the pinnacle of technological innovation, propelling us into the new paths of modern progress. Under the leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, the National Supercomputing Mission is being jointly steered by MITI and DST, executed by CDAC and IISc, carrying forward the legacy of Atmanirbhar Bharat under Phase 3 of NSM. सुपर कंप्यूटिंग सेंटर परम शिवाय की शुरुआत से नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन को गति मिलेगी। CDAC is establishing Param Rudra, state-of-the-art supercomputing systems across the country. These systems are based on Rudra servers, designed, developed and manufactured in India. CDAC has deployed a 3 petaflops supercomputing system at Inter University Accelerator Center, Delhi with 650 Rudra servers. This facility will support research in medical treatments, energy production, environmental monitoring and many other related domains and facilitate researchers of more than 350 universities and institutions under IUAC.
The Giant Meter Wave Radio Telescope GMRT in Maharashtra, operated by the National Center for Radio Astrophysics NCRA, is one of the world's largest and most sensitive radio telescopes. CDAC has commissioned a 1 petaflop Param Rudra supercomputing system equipped with GPUs enhancing GMRT's sensitivity to low and mid radio frequencies, enabling advanced studies in radio astronomy and the interstellar medium. An 838 teraflops Param Rudra supercomputer at SN Bose National Center of Basic Sciences, Kolkata, features 180 Rudra servers, facilitating researchers to address complex problems like material science, earth science, high energy physics, cosmology, and astrophysics. It also serves a broad range of users from various premier research institutes in and around Kolkata. These 3 Param Rudra facilities are powered by CDAC's system software stack, providing easy provisioning, advanced real-time monitoring and management. This commences a new chapter towards self-reliance in high-performance computing, ultimately leading to exascale. Supercomputers used for advanced research and data analytics can significantly impact the agricultural sector. By leveraging these powerful NSM systems, researchers can develop advanced seeds, improve fertilizers, and enhance soil quality. Supercomputing also enables more accurate weather forecasting, helping farmers make informed decisions. These advancements ultimately boost crop yields, optimize resource usage, and increase farmers' incomes, driving growth and sustainability in agriculture. India has pole vaulted in HPC technologies. This is the journey of India's supercomputers, a story of innovation, resilience, and a future filled with limitless possibilities in solving grand challenge problems, thereby enhancing the quality of research for the benefit of mankind. NSM proudly announces the launch of its first in the series of indigenously designed, developed and manufactured in India supercomputers. Rudra, Hamara Sankalp, Atmanirbhar Bharat, Vikasit Bharat. अब मैं अनुरोध करता हूं जीएमआरटी एनसीआरए के प्रोफेसर श्री जयंता रॉय से अपना अनुभव व्यक्त करने का कष्ट करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार, मैं प्रोफेसर जयंत रॉय फ्रॉम एनसीआरए टीआईएफआर जीएमआरटी में रिसर्च करता हूं। आज हमें अधिक प्रसन्नता है कि ये परम रुद्र सिस्टम जो जीएमआरटी में आपके द्वारा इंस्टॉल और इनोग्रेट करने वाला है। सो एनसीआरए टीआईएफआर नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर काम करते हैं, वी आर एक्चुअली established and developed the giant meter wave radio telescope, which is one of the unique, even more successful engineering development and as well as scientific research equipment. And now this Param Rudra system, which is built on this indigenously developed Rudra server, getting integrated into the GMRT, which is actually making this commensal search for first radio transient sky. This is one of the emerging field in the research where Indian scientists and engineers can take a lead role, which is the one we are looking for. Not only the hardware, the software which is based on the AI and big data science, these are actually built on the software written by our research students and professors, are all aligned with the approved Indian AI missions and looking forward towards the Vikasit Bharat. The system will be the unique one before the mega science project like this will come online, where nations can take a lead role. नमस्कार माननीय प्रधानमंत्री जी, जीएमआरटी एनसीआर के ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट, इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेटर सेंटर से रिसर्च वैज्ञानिक श्री सुमित कुकरेती से अनुरोध है कि वे अपना अनुभव साझा करें। नमस्कार माननीय प्रधानमंत्री महोदय, मेरा नाम सुमित कुकरेती है और मैं आईयूएससी न्यू दिल्ली में रिसर्च एसोसिएट के रूप में कार्यरत हूँ और मुझे परम सौभाग्य मिला है कि आज आईयूएससी न्यू दिल्ली में आपके द्वारा जो है इस परम रुद्र फैसिलिटी का उद्घाटन किया जा रहा है। सामान्यतः विज्ञान में किसी भी शोध कार्य को करने के लिए मूलतः सैद्धांतिक रूप से, प्रयोगात्मक रूप से एवं कंप्यूटेशनल सिमुलेशन के माध्यम से कार्य किया जाता है। तो इसमें कंप्यूटेशनल और सिमुलेशन माध्यम से कार्य को करने के लिए सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटीज की बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है।
तो NSM राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन द्वारा प्रदान की जा रही इस सेवा के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं। और मेरा खुद का भी काफी अनुभव रहा है परम शिवाय परम स्मृति को प्रयोग करते हुए। लेकिन आज जो आपके द्वारा की पेटाफ्लो फैसिलिटी की परम रुद्र जो ये सुविधा प्रदान की जा रही है, इसका अपने आप में बहुत महत्व है, क्योंकि 3 पेटाफ्लो फैसिलिटी और उसके साथ हाई मेमोरी और हाई नंबर ऑफ नोड्स की जो फैसिलिटी है, वो किसी भी रियलिस्टिक और एक्यूरेट सिमुलेशन को करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, जिसके लिए आजकल हम ज्यादातर जो है मूलतः ज्यादातर विद्यार्थी इस लेवल का जो क्रिटिकल रिसर्च प्रॉब्लम्स है को नहीं सोच पाते थे, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज की आवश्यकता होती थी। आज ये 3 पेटाफ्लो फैसिलिटीज से मैं ये अनुभव कर पा रहा हूँ, मैं खुद भी काफी एक्साइटेड हूँ इसको यूज करने के लिए, और मैं ये आशा करता हूँ कि IUAC के यूजर्स एवं वैज्ञानिकों द्वारा इसका प्रयोग करते हुए जरूर इस बहुत ही अच्छे जो है वैज्ञानिक परिणामों की तरफ आगे बढ़ा जाएगा, और इसके साथ साथ हमारी अन्य देशों पर जो निर्भरता है सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी को लेकर के, वो उसमें जरूर रूप से कमी आएगी। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय। अब मेरा अनुरोध है SN बोस इंस्टीट्यूट की रिसर्च स्कॉलर सुश्री शहीरा शहीद से कि वे अपना विचार व्यक्त करें। नमस्कार आदरणीय प्रधानमंत्री जी। I am Shahira Shahid from SN Bose National Center for Basic Sciences. So first of all, I want to thank you for the Param Rudra High Performance Computing Facility developed under India's National Supercomputing Mission. So it represents a significant leap in high performance computing, providing a powerful platform for computing research in diverse fields like biophysics, material science, high energy physics, and many more. So in my field of interest, high performance computing is essential for simulating large biological systems which involve millions of atoms. And in fact, the integration of machine learning with high energy, with your supercomputing facilities would revolutionize the predictive modeling and drug designing. And also in let's say in the field of material science, it will enable the design and analysis of materials with enhanced properties by accelerating the data-driven approaches. So by integrating, I think, AI techniques with high-performance computing, you have given us a huge leverage in this fast-paced world. And Param Rudra is aimed to driving innovation and enabling India's scientific community to tackle some of the most challenging problems in this field. So on behalf of SN Bose National Center for Basic Sciences, I would like to thank you for providing us with this facility. अब मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के HPC कंप्यूटिंग सिस्टम्स को रिमोट का बटन दबाकर लॉन्च करने की कृपा करें। खराब मौसम अब केवल सुर्खियों तक सीमित नहीं रह गया है। चक्रवात, बाढ़, लू और सूखा हमारे दैनिक जीवन, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा पर गहरा प्रभाव डाल रहे हैं। हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग या HPC तेज और सटीक मौसम पूर्वानुमानों का अहम जरिया है, जो हमें तब जरूरी जानकारी उपलब्ध कराता है जब उसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। भारत सरकार ने IITM पुणे और NCMRWF नोएडा जैसे प्रमुख संस्थानों में HPC के क्षेत्र में महत्वपूर्ण निवेश किया है, जहां भारत के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर मौसम पूर्वानुमान के लिए समर्पित हैं। इन नए HPC सिस्टम की स्थापना से भारत की मौसम सेवाएं और अधिक सटीक, विश्वसनीय और सुदृढ़ हो जाएंगी। इनकी अत्याधुनिक तकनीक मौसम की बेहद सटीक भविष्यवाणियों को संभव बनाती है, जिससे तूफानों की पूर्व चेतावनी, बाढ़ की सटीक भविष्यवाणी और विश्वसनीय मौसमी अनुमान प्रदान किए जा सकते हैं। किसानों से लेकर आपातकालीन सेवाओं तक HPC समुदायों को सशक्त बनाता है, जीवन की रक्षा करता है और एक सुदृढ़ भविष्य की नींव रखता है। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी नए HPC सिस्टम्स का उद्घाटन करेंगे। अब मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे के वैज्ञानिक डॉक्टर अंकुश श्रीवास्तव से अनुरोध करता हूं
कि वे अपना अनुभव बताने का कष्ट करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, नमस्कार। मेरा नाम अंकुर श्रीवास्तव है और मैं भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत हूँ। यह सिस्टम जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यह नया सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम है अर्क। इस नए सुपर कंप्यूटर की क्षमता पुराने सुपर कंप्यूटर के अपेक्षा 3 गुना है। This new supercomputer will help us enhance weather and climate forecasts, will help us to provide high-resolution weather forecast from the current 12 kilometers to 6 kilometers. It will help us in enhancing the forecasts of extreme weather events such as thunderstorms, hailstorms, landslides, etc. This new supercomputer also houses graphics processing units, which will help us leverage artificial intelligence and machine learning in enhancing the country's capability at accurate weather and climate forecasts at all time scales. हमें ऐसा उत्कृष्ट सिस्टम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे यह कहते हुए अत्यंत गर्व हो रहा है कि इन नए सुपर कंप्यूटर्स के आने के बाद भारत की गिनती उन शीर्ष देशों के साथ की जाएगी जिन्होंने सटीक मौसम पूर्वानुमानों के लिए इतने बड़े सुपर कंप्यूटर्स में देश को समर्पित किया है। धन्यवाद। नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग नोएडा के वैज्ञानिक डॉक्टर श्रीमती अमर ज्योति जी से अनुरोध है कि वे अपना अनुभव साझा करें। नमस्कार आदरणीय प्रधानमंत्री जी, I am Dr. K. Amar Jyoti. I am working as scientist at National Center for Medium Range Weather Forecasting under Ministry of Earth Science. Thank you, sir, for giving me an opportunity to introduce this new high-performance supercomputer to you. The augmentation of this system is 3 times more, and it is named as Arunika. This Arunika HPC system will advance the understanding of weather, resulting in better predictions and improved weather services for the nation. The major benefits of this system will help us to improve block-level forecast and enhancing the model resolution globally, regionally, and at nation level, improving short, medium, and extended range weather forecasting too, utilizing advanced numerical techniques and atmosphere ocean coupled models with probabilistic forecast will be helpful for us to give an improved weather forecast. Urban meteorology, air quality, fog forecast for many cities in India. This new HPC facility will help us to develop models using AI and ML techniques. Sir, we are confident that with this Arunika will help in provide more reliable and accurate weather forecasting system, and we will be able to improve our cyclone forecast, drought forecast, etc. Thank you. धन्यवाद। अब मैं माननीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे हमें संबोधित करें। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज उपस्थित सभी डायरेक्टर्स, साइंटिस्ट, स्टूडेंट्स और सभी मित्रों और साथ में ऑनरेबल डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, आप सभी को मेरा नमस्कार। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 10 वर्षों में भारत में इनोवेशन की एक नई परंपरा आरंभ की है। अगर हम देखें इन 10 वर्षों में प्रधानमंत्री जी के मेक इन इंडिया और डिजाइन इन इंडिया कार्यक्रम के तहत इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां आई है जिनका आज से 10 साल पहले इमेजिन करना भी मुश्किल होता था कि हम भारत में ऐसी चीजें बना सकते हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो सबसे बड़ी हम सब युवाओं को, हम सब नौजवानों को, सभी साइंटिस्ट और इंजीनियर्स को जो सबसे बड़ी सौगात दी है वो है हमें अपनी क्षमता में कॉन्फिडेंस लाने की एक बहुत बड़ी शक्ति। जब प्रधानमंत्री जी ने भारत के इंजीनियर्स पे, टैलेंट पे कॉन्फिडेंस रखा तो भारत में टेलीकॉम का 4G और 5G बना और अब करीब 25,000 टावर पे लग चुका है और आने वाले समय में एक्सपोर्ट होने की तैयारी है। जब प्रधानमंत्री जी ने रेलवे के इंजीनियर्स पे कॉन्फिडेंस रखा तो वंदे भारत बनी और उसके वर्जन 1, 2, 3 नई नई तरह की नमो भारत ट्रेन, वंदे भारत स्लीपर सब बनने लगे। यही चीजें पहले विदेशों से लाई जाती थी।
जब प्रधानमंत्री जी ने डिफेंस के प्रोडक्शन इंजीनियर्स पे कॉन्फिडेंस रखा तो आर्टिलरी गन्स बनने लगी, शिपिंग सिस्टम्स बनने लगे, डिफेंस के एरोस्पेस के ऐसे सिस्टम्स बनने लगे which we would have never thought that we can ever manufacture them in India. It used to be almost always imported, and in today's world, in the last 10 years, there is so much change in the mindset that we are today thinking, designing, manufacturing, testing, and so many times exporting these systems. ये जो सारी बड़ी उपलब्धियां हैं, ये माइंडसेट चेंज के कारण हो पाई है, और ये प्रधानमंत्री जी का देश के सभी साइंटिफिक कम्युनिटी का, इंजीनियरिंग कम्युनिटी पर बहुत बड़ा योगदान है। आज का दिन भी इसी गौरवमयी इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। परम रुद्र सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम्स को माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज इनॉग्रेट किया है। बहुत बड़ी उपलब्धि है। सबसे और आनंददायक चीज है वो ये कि ये दोनों के दोनों ये कंप्यूटर्स तीनों के तीनों इनके सर्वर्स भारत में बने। भारत की दो कंपनियां विविडियन और केन्स ने तो अभी हाल ही में सेमीकंडक्टर बनाने का काम भी चालू किया है। इन कंपनियों ने इन सर्वर्स को बनाया है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि भारत में डिजाइन किए हुए कंप्यूटर्स का भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग होने लगा है। साथियों, हम सभी जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है और एक रियल चैलेंज है। हम देख रहे हैं किस तरह से अचानक बारिश आती है, अचानक सूखा है। जो टेम्परेचर नॉर्मल कई वर्षों तक रहता था, अब उसमें बड़े वेरिएशंस आने लग गए। इन परिस्थितियों में देश के लिए सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी और उस सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी को यूज करके क्रिएटिंग न्यू मॉडल्स which will help our farmers, which will help our governments across the country, which will help our villages, which will help our cities, और हर नागरिक के जीवन में जो क्लाइमेट चेंज के कारण चैलेंजेस आ रहे थे, उन चैलेंजेस को फेस करने के लिए ये सुपर कंप्यूटर्स बहुत मदददायक होंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत अभिनंदन करता हूँ, सभी इंजीनियर्स का, सभी साइंटिस्ट का अभिनंदन करता हूँ, सभी स्टूडेंट कम्युनिटी जो कि इस पूरे प्रोग्राम में और इस पूरे डेवलपमेंट प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया, आप सबका अभिनंदन करता हूं कि इतनी बड़ी उपलब्धि देश की। और ये जैसा प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं, ये तो केवल ट्रेलर है, अभी तो बहुत बड़ी जर्नी, बहुत मेहनत करके देश को और भी नई बुलंदियों तक हम सबको पहुंचाना है। मैं प्रधानमंत्री जी को और सभी साथियों को नमस्कार करता हूं, धन्यवाद देता हूं। जय हिंद। अब वो अवसर है जिसकी हम सब को उत्सुकता से प्रतीक्षा थी। मैं अत्यंत विनम्रता के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि हम सबको अपने वचनों से संबोधित करने की कृपा। माननीय प्रधानमंत्री जी। नमस्कार। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मिनिस्टर श्रीमान अश्विनी वैष्णव जी, देश की विभिन्न रिसर्च संस्थाओं के निर्देशक, देश के वरिष्ठ वैज्ञानिक, इंजीनियर्स, रिसर्चर्स, स्टूडेंट्स, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि का दिन है। 21वीं सदी का भारत कैसे साइंस और टेक्नोलॉजी और रिसर्च को प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ रहा है, आज का दिन इसका भी प्रतिबिंब है। आज का भारत संभावनाओं के अनंत आकाश में नए अवसरों को तराश रहा है। हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स ने 3
परम रुद्र सुपर कंप्यूटर्स बनाए हैं। ये 3 सुपर कंप्यूटर्स दिल्ली, पुणे और कोलकाता में इंस्टॉल किए गए हैं। आज ही देश के लिए अर्का और अरुणिक 2 हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम्स का उद्घाटन भी किया गया है। मैं इस अवसर पर देश के वैज्ञानिक समुदाय को, इंजीनियर्स को और सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, मेरे तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में मैंने युवाओं के लिए 100 दिन के अलावा 25 अतिरिक्त दिन देने का वादा किया था। उसी क्रम में आज मैं ये सुपर कंप्यूटर्स देश के मेरे युवाओं को डेडिकेट करना चाहूंगा। भारत के युवा वैज्ञानिकों को ऐसी स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी भारत में ही मिले, इस दिशा में ये सुपर कंप्यूटर्स अहम भूमिका निभाएंगे। आज जिन 3 सुपर कंप्यूटर्स का लोकार्पण हुआ है, फिजिक्स से लेकर अर्थ साइंस और कॉस्मोलॉजी तक ये एडवांस रिसर्च में मदद करेंगे। ये वो क्षेत्र हैं जिनमें आज का साइंस एंड टेक्नोलॉजी वर्ल्ड भविष्य की दुनिया को देख रहा है। साथियों, आज डिजिटल रिवॉल्यूशन के इस दौर में कंप्यूटिंग कैपेसिटी नेशनल कैपेबिलिटी का पर्याय बनती जा रही है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में रिसर्च के अवसर, इकोनॉमी के लिए ग्रोथ के अवसर, राष्ट्र का सामरिक सामर्थ्य, डिजास्टर मैनेजमेंट की कैपेसिटी, ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जो सीधे तौर पर टेक्नोलॉजी और कंप्यूटिंग कैपेबिलिटी पर निर्भर न हो। ये इंडस्ट्री 4.0 में भारत की सफलता का सबसे बड़ा आधार है। इस रिवॉल्यूशन में हमारा शहर बिट्स और बाइट्स में नहीं, बल्कि टेराबाइट्स और पेटाबाइट्स में होना चाहिए। और इसलिए आज की ये उपलब्धि इस बात का प्रमाण है कि हम सही दिशा में सही गति से आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, आज का नया भारत विकास और टेक्नोलॉजी में केवल बाकी दुनिया की बराबरी करके संतुष्ट नहीं हो सकता। नया भारत अपने वैज्ञानिक अनुसंधानों से मानवता की सेवा को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानता है। यह हमारा दायित्व है। अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है। इसके लिए हमने डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया जैसे कई ऐतिहासिक अभियान शुरू किए हैं। भारत की फ्यूचर जनरेशन में साइंटिफिक टेम्पर मजबूत हो,
इसके लिए स्कूलों में 10,000 से ज्यादा अटल टिंकरिंग लैब्स भी बनवाई गई है। स्टेम सब्जेक्ट्स की एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप भी बढ़ाई गई है। इस साल के बजट में 1 लाख करोड़ रुपए के रिसर्च फंड की घोषणा भी की गई है। प्रयास यही है कि भारत 21वीं सदी की दुनिया को अपने इनोवेशन से एम्पावर करे, दुनिया को मजबूत बनाए। साथियों, आज ऐसा कोई सेक्टर नहीं जिसमें भारत नए निर्णय नहीं ले रहा, नई नीतियां नहीं बना रहा। एक उदाहरण स्पेस सेक्टर का है। आज स्पेस सेक्टर में भारत एक बड़ी पावर बन चुका है। दूसरे देशों ने कई बिलियन डॉलर खर्च करके जो सक्सेस हासिल की, हमारे वैज्ञानिकों ने वही काम सीमित संसाधनों में करके दिखाया है। अपने इसी जज्बे को लेकर भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बना है। इसी संकल्प को लेकर भारत अब मिशन गगनयान की तैयारी कर रहा है। भारत का मिशन गगनयान केवल अंतरिक्ष तक पहुंचने का नहीं, बल्कि हमारे वैज्ञानिक सपनों की असीम ऊंचाइयों को छूने का मिशन है। आपने देखा है 2035 तक भारत ने अपने स्पेस स्टेशन को बनाने का लक्ष्य रखा है। अभी कुछ ही दिन पहले सरकार ने इसके पहले चरण को मंजूरी दे दी है। साथियों, आज सेमीकंडक्टर्स भी डेवलपमेंट का एसेंशियल एलिमेंट बन चुके हैं। भारत सरकार ने इस दिशा में भी इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन जैसा महत्वपूर्ण अभियान लॉन्च किया है। इतने कम समय में हमें इसके पॉजिटिव रिजल्ट दिखने लगे हैं। भारत अपना खुद का सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम तैयार कर रहा है, जो ग्लोबल सप्लाई चेन का अहम हिस्सा होगा। आज 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर्स के जरिए भारत के इस बहुआयामी वैज्ञानिक विकास को और मजबूती मिलेगी। साथियों, कोई भी देश बड़ी उपलब्धियां तब हासिल करता है जब उसका विजन बड़ा होता है। भारत का सुपर कंप्यूटर से लेकर क्वांटम कंप्यूटिंग तक का सफर इसी बड़े विजन का परिणाम है। एक समय सुपर कंप्यूटर गिने चुने देशों की महारत माने जाते थे, लेकिन हमने 2015 में नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन शुरू किया और आज भारत सुपर कंप्यूटर्स की दिशा में बड़े देशों की बराबरी कर रहा है और हम यहीं रुकने वाले नहीं हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी टेक्नोलॉजी में भारत अभी से लीड ले रहा है। क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में भारत को आगे ले जाने में हमारे नेशनल क्वांटम मिशन की बड़ी भूमिका होगी। ये नई टेक्नोलॉजी
आने वाले समय में हमारी दुनिया को पूरी तरह से बदल देने वाली है। इससे आईटी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, एमएसएमई और स्टार्टअप सेक्टर में अभूतपूर्व बदलाव आएंगे, नए अवसर बनेंगे और इसमें भारत पूरी दुनिया को एक नई दिशा देने की सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। साथियों, विज्ञान की सार्थकता केवल आविष्कार और विकास में नहीं, बल्कि सबसे अंतिम व्यक्ति की आशा आकांक्षाओं को, उसकी एस्पिरेशंस को पूरा करने में है। आज अगर हम हाईटेक हो रहे हैं तो ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं हमारी हाईटेक टेक्नोलॉजी गरीबों की ताकत बने। भारत की डिजिटल इकोनॉमी, हमारा यूपीआई इसका एक बड़ा उदाहरण है। हाल ही में हमने मिशन मौसम भी लॉन्च किया, जिसमें वेदर रेडी और क्लाइमेट स्मार्ट भारत बनाने का हमारा सपना पूरा होगा। आज भी सुपर कंप्यूटर्स और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम जैसी जो उपलब्धियां देश ने हासिल की है, इनके परिणाम देश के गांव गरीब की सेवा का माध्यम बनेंगे। एचपीसी सिस्टम के आने के बाद मौसम से जुड़ी भविष्यवाणी करने में देश की वैज्ञानिक क्षमता, हमारी ताकत बहुत बढ़ जाएगी। अब हम हाइपर लोकल यानी बिल्कुल स्थानीय स्तर पर मौसम से जुड़ी ज्यादा सटीक जानकारी दे पाएंगे। यानी एक गांव उस गांव के इलाके तक की बता पाएंगे। सुपर कंप्यूटर जब एक दूर दराज के गांव में मौसम और मिट्टी का विश्लेषण करता है तो ये केवल विज्ञान की उपलब्धि भर नहीं है, बल्कि यह हजारों लाखों जिंदगियों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव है। सुपर कंप्यूटर तय करेगा कि मेरे छोटे से छोटे इलाके के किसान के पास दुनिया की बेस्ट नॉलेज उपलब्ध होगी। इसका बहुत बड़ा लाभ अब छोटे से छोटे गांव में खेती कर रहे किसानों को होगा, क्योंकि इससे अब किसान अपनी फसल के लिए सही निर्णय ले पाएगा। इसका लाभ समुद्र में मछली पकड़ने जाने वाले मछुआरों को होगा। हम किसानों को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए नए तौर तरीके निकाल पाएंगे। इससे इंश्योरेंस बीमा, जो फसल बीमा होता है, इंश्योरेंस योजनाओं की सुविधा पाने में भी मदद मिलेगी। हम इसकी मदद से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और मशीन लर्निंग से जुड़े मॉडल्स बना पाएंगे, जिसका फायदा तमाम स्टेक होल्डर्स को होगा। देश के भीतर सुपर कंप्यूटर्स बनाने की हमारी काबिलियत, ये उपलब्धि देश के सामान्य मानवी के लिए एक गर्व की बात तो है ही। इससे आने वाले समय में देशवासियों के सामान्य वर्ग के जीवन में बड़े बदलाव के रास्ते भी निकलेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई
और मशीन लर्निंग के इस दौर में सुपर कंप्यूटर्स बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। जैसे आज भारत ने अपनी स्वदेशी तकनीक से 5G नेटवर्क बनाया है, जैसे आज बड़ी बड़ी कंपनियों के मोबाइल फोन्स भारत में बन रहे हैं, इससे देश की डिजिटल क्रांति को नए पंख लगे हैं। इससे हम टेक्नोलॉजी और उसके फायदों को हर देशवासी तक पहुंचा पाए हैं। इसी तरह भविष्य की तकनीक विकसित करने में हमारा सामर्थ्य, मेक इन इंडिया की हमारी सफलता, ये देश के सामान्य मानवी को आने वाले कल के लिए तैयार करेगी। सुपर कंप्यूटर से हर क्षेत्र में नए शोध होंगे, इनसे नई संभावनाओं का जन्म होगा। इसका लाभ देश के आम लोगों को मिलेगा। वो बाकी दुनिया से पीछे नहीं होंगे, बल्कि कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। और मेरे नौजवानों के लिए तो, मेरे देश की युवा शक्ति के लिए, और भारत जब दुनिया का युवा देश है तब आने वाला युग जब विज्ञान और टेक्नोलॉजी से ही चलने वाला है, तो ये नए अवसरों को जन्म देने वाली घटना भी है। मैं देश के नौजवानों को इन सब के लिए विशेष बधाई देता हूं। इन उपलब्धि के लिए मैं देशवासियों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं आशा करता हूं हमारे युवा, हमारे जो रिसर्चर्स इन एडवांस फैसिलिटीज का लाभ उठाएंगे, साइंस की फील्ड में नए डोमेन्स को खोलेंगे। एक बार फिर आप सभी को अनेक अनेक शुभकामनाएं। धन्यवाद।